In last class, we have discussed about laws of kinetic theories of gases, ideal gas equation. Yes, Randir, what is the Boyle's law? What is the Boyle's law? V inversely proportional to P at constant temperature. What is Charles' law? V directly proportional to T at constant pressure. And what is the Gay-Lussac law, Kuldeep? What is the Gay-Lussac law? P directly proportional to T, that means pressure directly proportional to temperature at constant volume. What is the absolute zero temperature? Hmm. Volume of becomes zero. What is the value of absolute zero temperature? Minus 273.15 degrees Celsius or 0 Kelvin. So, what is actual kinetic theory of gases? What is the theory of gases? Today we will discuss about kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. So, first thing, all gas particles are distinct particles without any attraction between each other. So in gaseous state, all the matter particles are solid, small particles are in solid form, and there is no attraction between any two molecules. Any two molecules. So this is the first thing. That means all particle of gas are solid, spare, small spare, small spare, and no attraction between these particles. Between these particles. इन पार्टिकल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है, किसी टाइप का अट्रैक्शन नहीं होगा. ठीक है. सो दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. ऑल पॉसिबल डायरेक्शन रेंडमली. डायरेक्शन रैंडमली. रैंडमली वो सभी डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव करते हैं. एक दूसरे पार्टिकल के बीच में किसी टाइप का कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है. सेकेंड थिंग, size of the gas particle, gas molecule is negligible as compared to distance between two molecules. दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस है, उसके कंपैरेटिवली जो साइज है वो क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है. क्या होती है? नेग्लिजिबल. साइज ऑफ गैस पार्टिकल, साइज ऑफ गैस पार्टिकल आर negligible as compared to average distance between gas molecule. Gas molecule. समझ में आ गई बात कि जो साइज होती है गैस पार्टिकल की वो क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू
डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। अब अगर अगली बात करें हम लोग, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एक मॉलिक्यूल का मास जो होता है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ द टोटल कंटेनर ऑफ द गैस। गैस के एक मॉलिक्यूल का मास पूरे गैस को एक साथ मिला ले, उसके जो मास होगा उसके कंपेरेटिवली क्या होगा? नेग्लिजिबल। क्या होगा? नेग्लिजिबल। मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इट्स मास, टोटल मास, इट्स टोटल मास। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? मॉलिक्यूल ऑफ द गैस पार्टिकल रेगुलरली कोलाइड विच ईच अदर। गैस पार्टिकल रेगुलरली क्या करते हैं? एक दूसरे को कोलाइड करते हैं एंड आल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। आल्सो कोलाइड विद वॉल ऑफ द कंटेनर। तो रेगुलरली कोलाइड करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगी, मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, एंड ड्यू टू दैट मोमेंटम चेंज दे विल प्रोड्यूस प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। दे विल प्रोड्यूस प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस मॉलिक्यूल गैस molecule regularly collide with each other, collide with each other and produce and collide with each other and with wall of container, with the wall of container. Hence, due to change in momentum, change in momentum, they will produce produce pressure on wall of they will produce pressure on wall of container, wall of। समझ में आ गई चीज? जो दो सक्सेसिव कोलिजन होता है, उन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में गैस का मॉलिक्यूल एक थोड़े टाइम के लिए एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। क्या करता है? स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, उसको बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। इसी तरह से सभी कोलिजन के अंदर जो फ्री पाथ होता है उनका एवरेज दैट इज नोन एज दी मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं उसको? मीन फ्री पाथ। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस मॉलिक्यूल्स गैस molecule between two successive collision, between two successive collision, successive collision
is called free path and mean of free path for n collision is known as mean free path. mean free path क्या बोलेंगे इसको? मीन फ्री पाथ. So this is the all about kinetic theory of the gases. What is the first point? While first, all particle of gas are solid, small sphere, and no attraction between the particles. So they move in. They move in all possible direction randomly. Move in all possible direction randomly. Size of the gas particle are negligible as compared to the average distance between the molecule. दो मोलिक्यूल के बीच में जितनी डिस्टेंस है वो जो है उसके कंपेरेटिवली गैस के मोलिक्यूल की साइज क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है, बहुत छोटी होती है. मास ऑफ द वन मोलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इट्स टोटल मास. गैस के टोटल मास से कंपेरेटिवली एक मोलिक्यूल का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है. गैस के पार्टिकल रेगुलरली एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और वॉल के साथ भी क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं. इसलिए इसके मोमेंटम में चेंज होता है और मोमेंटम में चेंज होने के कारण ये वॉल पे क्या करते हैं? प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं? प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं. और गैस के मॉलिक्यूल दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एक जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं दैट इज नोन एज द फ्री पाथ. क्या बोलते हैं उसको? फ्री पाथ. और इस तरह से एन कोलिजन का जो फ्री पाथ होता है उसका एवरेज को बोलते हैं मीन फ्री पाथ. क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ. नाउ वी विल डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर बाय गैस ऑन वॉल ऑफ द कंटेनर. प्रेशर by gas on wall of container. कंटेनर की वॉल पे कितना प्रेशर होगा वो हमें फाइंड करना. तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे प्रेशर? So let we have a container in which gas molecule are fixed like this. This is piston. This can move. Or one gas is filled in this side. So gas molecule can move in all the possible direction. So let one particle here strike with this one. Mass of the one particle, let m, small m. When it strike, it will move back in this direction. So momentum will be changed or not? Momentum will be changed. How much momentum will be changed, that we will find. So first of all, we will assume that small n molecules present in per unit volume of gas. पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स है गैस के? स्मॉल एन मॉलिक्यूल्स है. तो चेंज इन मोमेंटम इन वन पार्टिकल कितना होगा? कि लेट molecules move in x direction with the speed vx. Strike on wall. Then change in momentum.
चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करोगे? क्या होगा? डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी वन बोल देते हैं इसको, वन मॉलिक्यूल का वन ले सकते हैं। तो इधर जाने की स्पीड क्या थी? एम इंटू वी एक्स, वापिस जाएगा उधर वाले माइनस ले सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस एम इंटू वी एक्स माइनस एम इंटू वी एक्स। कैसे हुआ पता चला? इधर वाली स्पीड अगर अपन पॉजिटिव लेते हैं, वी एक्स इस साइड में आएगा, तो वापस से इसी डायरेक्शन में क्या जाएगा? वापस जाएगा इसमें, वी एक्स स्पीड से नहीं जाएगा। ये वाली अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगी? नेगेटिव। मोमेंटम में चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? एम इंटू वी एक्स। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? माइनस एम इंटू वी एक्स। तो डेल्टा पी वन इक्वल टू कितना आया? माइनस टू एम इंटू वी एक्स। अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल्टा पी वन कितना आएगा उनके पास? माइनस टू को हटा देते हैं यहाँ, मैंने से एम वी एक्स ले सकते हैं। एक पार्टिकल से इतना चेंज आ रहा है, एक पार्टिकल से इतना चेंज आ रहा है। तो हमारे पास, तो अगर अपन बात करें यहाँ पे एरिया ए है, कितना एरिया है? ए। और यहाँ पे डिस्टेंस टी तक, यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, तो इस टी डिस्टेंस का है अपने पास, ठीक है। तो टी टाइम है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस लेते हैं, डेल्टा एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं, टी टाइम है अपने पास। तो ये जो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वॉल्यूम। उस वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स होंगे वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल present in given वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ पार्टिकल n इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, इनटू पर यूनिट वॉल्यूम पार्टिकल्स कितने बेटा? स्मॉल एन। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ए इंटू डेल्टा एक्स, ए इंटू डेल्टा एक्स। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा एक्स क्या होगा हमारे पास? डेल्टा एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, वी एक्स इंटू टी, वी एक्स इंटू टी, या डेल्टा टी लिख दीजिए, टेंजेंट टाइम। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एन इक्वल टू एन इंटू ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ये आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बताओ अब? चेंज इन मोमेंटम, खैर रणधीर, टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इन टोटल चेंज कैसे निकालेंगे? एक पार्टिकल का चेंज इतना है, एन पार्टिकल का निकालना हमें। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा? एन इंटू पी वन, एन इंटू पी वन, ये होगा। तो हमारे पास डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा? एन स्मॉल एन इंटू ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू टू इंटू एम इंटू वी एक्स, एम इंटू वी एक्स। ये तो अब हमने ये माना कि टोटल सभी के पार्टिकल इधर आते हैं, एन पार्टिकल्स, ऐसा तो होता नहीं है। जो अगर जितने पार्टिकल हमारे पास इस वॉल की साइड में आ रहे हैं, उनमें से आधे पार्टिकल हो सकता है किधर जाएं, दूसरा एवरेज लेना पड़ेगा कि एवरेज कितने पार्टिकल हो गए। तो इसका एवरेज क्या होगा? हम लोग मान लेते हैं कि जो टोटल पार्टिकल है उसमें हाफ पार्टिकल तो स्ट्राइक कर रहे हैं उसको, और हाफ पार्टिकल उसे स्ट्राइक करके वापस जा रहे हैं। तो एवरेज मोमेंटम कितना होगा? एवरेज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो वो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ दिस वन, तो डेल्टा पी एवरेज इक्वल टू क्या होगा? एन इंटू ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एम इंटू वी एक्स, हाफ कर देंगे। तो पी एवरेज क्या हो जाएगा? डेल्टा पी एवरेज इक्वल हम लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन
2, क्योंकि हाफ हाफ पार्टिकल्स वापस जाने की ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक साथ सारे पार्टिकल आके टकराएंगे नहीं, आधे पार्टिकल हमने टकरा दिए। अब ये बताओ कि डेल्टा पी एवरेज अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या आया, n इंटू ए इंटू वी एक्स का स्क्वायर इंटू एम इंटू एम। अब बताओ P डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, इक्वल टू सो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसेज F इक्वल टू n इंटू ए इंटू वी एक्स का स्क्वायर इंटू एम, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ प्रेशर क्या होगा, तो यहां से कैसे निकालोगे प्रेशर बेटा, बताओ प्रेशर कैसे निकालोगे, एफ अपॉन ए कर दूं मैं इसको, एफ अपॉन ए इक्वल टू एन इंटू वी एक्स का स्क्वायर इंटू एम, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, एन एम वी एक्स स्क्वायर। अब हमने तो स्पीड को एक ही साइड में माना है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो होता नहीं है। जो स्पीड होती है वो तो एक्स डायरेक्शन भी हो सकती है, वो वाई डायरेक्शन भी हो सकती है, और वो जेड डायरेक्शन भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हम लोग ले रहे हैं एक्चुअली वी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वी जेड का स्क्वायर, और इसको मैं मान लेता हूँ वी बार, क्या मान सकता हूँ, और तो ये होगा किसके इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, इन तीनों के सम को डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 3। तो वी बार जो है वो अपने पास क्या होगा, वी बार का स्क्वायर 1/3 क्या हो जाएगा अपने पास, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। अब एक्चुअली हम लोग ले गए यहाँ पे, तो एक जो पार्टिकल है, ये तो हम एक ही डायरेक्शन में सब मान के चल रहे थे, तो एक्चुअल जो प्रेशर होगा वो एक डायरेक्शन में 1/3 होगा कि नहीं होगा, क्या होगा इसका 1/3। तो हम लोग जब एक्चुअल लिखेंगे वी बार के साथ, किस साथ लिखेंगे, वी बार के साथ लिखेंगे, तो हमारे पास P जो आएगा एग्जैक्टली वो आएगा एन एम इंटू 1/3 ऑफ वी बार का स्क्वायर, वी बार का स्क्वायर। तो एक्चुअल जो प्रेशर बनता है वो बनता है एन एम 1/3 एन एम वी बार का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन वॉल ऑफ द कंटेनर। देखिए वापस से समझिए, अच्छा कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन आने का चांस है एग्जाम में अगर अच्छा पेपर बनता है तो। क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, गैस के पार्टिकल लगातार क्या करेंगे, मूव करते रहे, करेंगे नहीं करेंगे लगातार मूव, रणधीर करेंगे। तो हमने मान लिया कि सारे जो वॉल्यूम है उसमें से यूनिट वॉल्यूम में अंदर जो गैस के पार्टिकल है वो स्मॉल एन पार्टिकल यूनिट वॉल्यूम में है। एक बार के लिए हमने माना कि जो पार्टिकल है वही एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, केवल एक्स डायरेक्शन, वापस इधर भी आएंगे, जाके आएंगे नहीं आएंगे। अब जैसे इधर गए ये, इधर स्पीड इसकी वी एक्स प्लस की थी, इधर स्पीड क्या होगी माइनस की वी एक्स। चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, मोमेंटम में चेंज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा एम इंटू वी एक्स, और इनिशियल मोमेंटम एम इंटू वी एक्स था, तो माइनस एम वी एक्स से माइनस एम वी एक्स, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 2m वी एक्स आ गया। हमारे पास एक पार्टिकल कितना मोमेंटम में चेंज करता है, 2m इंटू वी एक्स। हमारे पास एक पार्टिकल तो है नहीं, एक पार्टिकल हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर थोड़ा सा एरिया ले लेते हैं, पर क्योंकि ये एरिया ले लिया, इस एरिया के आगे थोड़ी सी डिस्टेंस ले ली हमने, कितनी, डेल्टा एक्स, कितनी ले ली, डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स डिस्टेंस के अंदर और एरिया के अगर रिलेट करें तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या बनेगा, ए इंटू डेल्टा एक्स, ए इंटू डेल्टा एक्स। तो गिवन वॉल्यूम जो ए इंटू डेल्टा एक्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, एन इंटू स्मॉल एन जो यूनिट वॉल्यूम में है, नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट वॉल्यूम इंटू टोटल वॉल्यूम, वहां से नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, एन इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा एक्स क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ये क्या आ गया, टोटल पार्टिकल आ गए। अब नेट चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, डेल्टा पी इक्वल टू एन इंटू पी वन पार्टिकल से जो है ये हमने निकाल दिया। बट ये तो हमने एक बार ये कंसिडर करके चला कि जितने भी यूनिट वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स है वो सभी एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज कितने पार्टिकल एक साथ कंसिडर करेंगे। तो ये मान लेते हैं कि भाई जो पार्टिकल्स है उसमें से आधे पार्टिकल उसको एक साथ ट्राई करें, आधे पार्टिकल वापस जा रहे हैं, तो इसलिए पी एवरेज हमने निकाला डेल्टा पी बाई 2। तो पी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी, यहाँ से 2 हट जाएगा, एम इंटू वी एक्स आ जाएगा। वी एक्स इंटू वी एक्स क्या हो गया, वी एक्स का स्क्वायर एन
और डेल्टा टी को डिवाइड में भेज दिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। तो एफ इक्वल टू आ गया एन ए वी एक्स स्क्वायर इंटू एम। अब यहाँ पे एक एरिया को भी डिवाइड में भेज दिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या बन गया, प्रेशर। तो ये आ गया एन एम वी एक्स का स्क्वायर। बट अब प्रॉब्लम ये है कि वी एक्स हमने सभी पार्टिकल की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में मानी है, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता है। तो एक्चुअल जो होगा वो क्या होगा, जो हमने वेलोसिटी मानी उसका भी 1/3 होगा, उसका भी। तो वी एवरेज जब लेंगे हम लोग तो इसको लिखेंगे एन एम 1/3 ऑफ वी बार का स्क्वायर। तो यहाँ क्योंकि हमने केवल एक ही डायरेक्शन कंसिडर किया है ना, तो एक्चुअल जो एवरेज होगा वो तो तीनों का लेना पड़ेगा ना। एक डायरेक्शन में कितने पार्टिकल जाएंगे, तो टोटल पार्टिकल से उसमें से 1/3 पार्टिकल जाएंगे। टोटल पार्टिकल में कितने जाएंगे, 1/3। तो हमारे पास पी एवरेज क्या आ गया, 1/3 एन एम वी बार का स्क्वायर। देख इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, ये 3 पार्टिकल है, इसमें से एक्स डायरेक्शन में कितना जाएगा, केवल एक जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 1/3। समझ में आ गई बात। ये क्या हो गया, मैंने बोला अगर 3 लेते हैं तो डायरेक्शन 3 है, एक्स वाई और जेड। अगर 3 पार्टिकल लेंगे तो एक इधर जा सकता है, एक इधर जा सकता है, एक इधर जब हमने डेरिवेशन पहले किया सब की सब एक बार एक्स डायरेक्शन में माने थे, तो लास्ट में मैंने कहा भाई अपन माने ना अलग चीज होता, पर एक्चुअल में क्या होगा, पार्टिकल तो रेंडम डायरेक्शन में जाएगा, तो रेंडम में से केवल एक ही दिशा में वो, तो उसकी वेलोसिटी में हम लोग क्या करेंगे, 1/3 लेना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी अगर पार्टिकल के लेते हैं तो। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई हमारे पास, P इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 एन एम वी स्क्वायर। हमारे पास प्रेशर क्या बना, P इक्वल टू 1/3 एन एम वी बार का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास क्या, क्या आ गया, प्रेशर। अब अगर देखें ये एनएम क्या है, टोटल मास है पार्टिकल्स का, क्या है टोटल मास है पार्टिकल का। इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, मास को पर यूनिट वॉल्यूम में डिवाइड करना कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये पर, ये प्रेशर इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर इन पर यूनिट वॉल्यूम। वो कैसे निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू 1/3 एन एम अपॉन वी, और ये वी बार का स्क्वायर। ये क्या बन गया, प्रेस मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। क्या होता है, अब यहां पे एक चीज जान लो, एनर्जी ऑफ द गैस क्या होती है, एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जब गैस पार्टिकल रेगुलरली मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी, होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, के ई इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर होता है, रो वी बार का। दोनों को डिवाइड करते हैं उन पास से, तो क्या आ जाएगा उन पास, पी अपॉन के ई इक्वल टू क्या होगा, 1/3 रो वी बार का स्क्वायर अपॉन 1/2 रो वी बार का स्क्वायर। रो वी बार के स्क्वायर रो वी बार क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो P अपॉन के ई इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रह जाएगा, तो 2/3 ये आएगा। तो P इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 ऑफ के ई। तो वी कैन से प्रेशर बाय गैस मॉलिक्यूल इक्वल टू 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर इक्वल टू 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सो प्रेशर by gas in per unit volume, in per unit volume equal to 2/3 of kinetic energy, kinetic energy। समझ में आ गई बात, या कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। वन टॉपिक दैट वी विल डिस्कस, that is Maxwell distribution, Maxwell distribution curve, Maxwell distribution curve। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या कहता है,
It define the density of the molecules for a particular given velocity. Like this. Here number of molecules, here velocity. So curve is like this. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स, उनकी वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है. पर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है दैट लाइज इन ए एवरेज वेलोसिटी रेंज, लेट v प्लस dv. ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, v प्लस वी dv हो जाएगा, v प्लस वी dv. ये जो वेलोसिटी रेंज है इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम पार्टिकल्स रहते हैं. तो दिस इज द वेलोसिटी एट विच मैक्सिमम पार्टिकल एग्जिस्ट. इट इज नोन एज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, according to Maxwell, molecule of gases, molecules of gases move with all possible velocities, velocity from 0 to infinite. But most of particles possess same average velocity. Velocity range in which maximum particle exist are known as most probable velocity. So what is the average velocity, what is the most probable velocity, and what is the RMS velocity? That we will discuss in next class. So that's all for this session. See you same time tomorrow at 4:30 for the next session. Okay. So bye bye. Thank you.